तो अभी हम ना राउंडिंग ऑफ डिजिट्स है ना, इसका रूल्स पढ़ेंगे है ना. जस्ट लेट मी सेंड मैसेज इन द ग्रुप फॉर एवरीवन टू जॉइन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड. गुड इवनिंग शदाब, गुड इवनिंग. Is less than 5, then if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. Then the preceding digit is left unchanged. तो उस केस में क्या होता है कि जो preceding digit है ना, that is basically left unchanged ना. For example, x equal to 7.82 है ना, is rounded off to x equal to 7.8. मान लो अगर 82 है ना, 0.82 है, तो 2 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना, है ना, ये जो 2 है, the last digit, if the last digit है ना is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. तो है ना, लास्ट डिजिट को हम ड्रॉप कर सकते हैं विथ, है ना, विदाउट चेंजिंग द प्रीसीडिंग डिजिट है ना. कॉमा, एग्जांपल, आई गिव यू अनदर एग्जांपल, 5.34. so what is the last digit here? 4 is less than 5 है ना. so 5.34, or I can say that x equal to 5.34, or I can say that x equal to 5.34 can be rounded off to x equal to 5.3. Is it clear? Yes, sir. This is clear, right? Okay. Next question, next point is if, है ना बच्चों, सब लोग क्लियर हो गए ना? The first point, everyone is clear in the first point? Yes, sir. पहला वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया है ना? Sir. Yes, sir. Is clear in the first point, right? Okay. So next is if the digit to be dropped is more than 5. If the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit is raised by 1. Then the preceding digit is raised by 1. Preceding digit is raised by 1. Then the preceding digit is raised by 1. है ना? So if the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit is raised by 1. है ना? For example, x equal to 6.87 है ना, is rounded off to x equal to 6.87, nearest is 9 है ना. Again x equal to 12.78 है ना. So if the digit to be dropped is greater than, it is greater than 5, 8 is greater than 5, so 7 has to be raised by 1 है ना. So the preceding digit जो 7 8 has to be raised by 1 है ना.
Now this is rounded off to 8 को ड्रॉप कर देंगे और 7 को 12.8. हाँ 7 + 1 8 है ना. This is rounded off to x equal to 12.8. ठीक है ना. So this is the second rule. Now comes the third rule. Third rule जो है okay, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped if the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0, 5 followed by digits other than 0, then the preceding digit is raised by 1. If the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0, then the preceding digit is raised by 1. ठीक है ना. For example है ना, 5, for example, if I write ठीक है ना, for example I can write here 17.452 है ना. So let's say I can say that x equal to 17.452 है ना. So x equal to 7.452 can be rounded off to rounded off to है ना 17.5. ठीक है. देखो, digit to be dropped is 5 followed by digit other than 0. मान लो यहाँ पे मुझे 5 को ड्रॉप करना है followed by है ना, followed by any digit other than 0. followed by any digit other than 0 क्या है, let's say 2. 5 is here followed by 2 और मुझे 5 ड्रॉप करना है. ठीक है ना. So in that case है ना, जो preceding digit of 5 है that is 4 has to be raised by 1. 4 has to be increased to by 1. तो ये 5 हो जाएगा. ठीक है. अगर मान लो मुझे 17.452 में से 5 को ड्रॉप करना है, 5 का जो अगला डिजिट है if it is anything other than 0, then the preceding digit of 5 which is 4 can be raised by 1. Hence 17.452 can be rounded off to 17.5. I'll give you another example. 21.7857, right. So 21.7857, यहाँ पे 5 को मुझे ड्रॉप करना है तो 5 का प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 8 है. तो 8 हैज टू बी रेज्ड बाय 1 है ना. कैन बी राउंडेड ऑफ टू 21.79.
Is this clear? Sir, हाँ what happened when the digit is 0? हाँ, उसका केस भी बोलूंगा ना मैं, ये अदर देन जीरो के लिए है, तो जीरो का भी तो एक केस होगा ना, Okay, देयर sir. मस्ट बी वन केस ऑफ जीरो, है ना? ठीक है, ओके। तो यहां तक समझ में आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Everyone Yes, understood till sir. this point? Okay, very good then, very good. चलो बच्चों, सबको है ना समझ में आ गया राउंडिंग ऑफ? वैसे राउंडिंग ऑफ इज अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, है ना? तुरंत लिख लो ये, बस है ना, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में काम में आएगा, एंट्रेंस में कोई काम नहीं है इसका, ठीक है? बट द पॉइंट इज दैट, है ना, कि बच्चों स्कूल एग्जाम्स ड्रॉप हो सकता है लेकिन एंट्रेंस ड्रॉप नहीं होगा, तो है ना, ये सब कॉन्सेप्ट को हमको फटाफट खत्म करके आगे बढ़ना है। जैसे कि सारा बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया, लेकिन जेई मेन होगा, और जो पेंडिंग जेई मेंस एग्जाम है ना इस साल का, और 2 जेई मेंस पेंडिंग एग्जाम है, वो तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है ना? एंट्रेंस ड्रॉप नहीं होता है, तो इट्स अ वेरी बिग आई ओपनर, इट शुड एक्ट एज ए आई ओपनर फॉर यू ऑल, सबके लिए ना एक आई ओपनर की तरह ना काम करना चाहिए, एक रियलिटी चेक, है ना, कि जो भी पढ़ो कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ो, है ना, पूरा उसको डीप लेवल तक पढ़ के जाओ, है ना, सो दैट यू डू वेल इन एंट्रेंस, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? एक मिनट बचो ना, एक्चुअली मेरा लैपटॉप में मैं चार्जर लगाया था, वो पिन जो है वो गिर गया नीचे, ठीक है? जस्ट अ मिनट। यस, आई एम बैक नाउ, आई एम बैक, वापस आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट खत्म करते हैं इसको। If the digit to be dropped is, है ना, 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is, then the preceding digit is left unchanged, is left unchanged if it is even। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ना, ये जो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट एंट्रेंस में काम में आता है, एक्चुअली कहाँ पे आता है? आजकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए हैं ना, ठीक है, तो एनटीए का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो तुम राउंडिंग ऑफ करोगे, है ना, जेई मेंस में हर सेक्शन में 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसका आंसर जो है एक इंटीजर या फिर एक नंबर, मतलब है ना, या फिर है ना, या फिर एक नंबर, रियल नंबर होता है विद डेसिमल नंबर, है ना, तो न्यूमेरिकल टाइप, है ना, इंटीजर टाइप या फिर न्यूमेरिकल टाइप होता है। अगर न्यूमेरिकल टाइप है देन यू हैव टू राउंड इट ऑफ, है ना, तुमको राउंड ऑफ करना है उसको, फॉलोइंग द सिग्निफिकेंट डिजिट रूल्स, ठीक है ना? यहाँ पे काम में आता है, मतलब ये क्वेश्चन में काम में नहीं आता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? जब हम आंसर, है ना, हमको जब आंसर फीड करना है ना, टेस्ट में आंसर फीड करने के टाइम में जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना, जो उसमें जो राउंडिंग ऑफ करेंगे हम लोग, है ना, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, ठीक है? So if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged if it is even, ठीक है ना, if it is even, ठीक है? Okay, so example, है ना, example is 14.650 is rounded off to 14.6, it is rounded off to 14.6, है ना,
और ये मान लो एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना, 301 पॉइंट, है ना, 301.450 is rounded off to it is rounded off to 301.4. ठीक है ना? Okay, next is if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros or 5 followed by zeros, then the preceding digit है ना, preceding digit जो है, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd, ठीक है ना? तो example, okay, I'll say that 13.650 is rounded off to, sorry, 13.750 is rounded off to, है ना, it is rounded off to 13.8, है ना, 306 point, हाँ बेटा, तो ये तो इवन नंबर है, तो इवन तो माइनस होता है ना? क्या हुआ, समझ ही नहीं आया बेटा? इवन में तो माइनस होता है, ऑड में प्लस होता है ना? हाँ, अरे प्रेसिडिंग डिजिट इज ऑड ना, 5 का अगर प्रेसिडिंग डिजिट ऑड है, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मान लो मुझे 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है ना, 13.750 में उसका प्रेसिडिंग डिजिट क्या है? प्रेसिडिंग डिजिट इज 7, है ना, इट इज एन ऑड नंबर, सो इट हैज टू बी रेज्ड बाय 1, so that becomes 13.8, ठीक है ना? और मान लो 306.350, 5 का यहाँ पे प्रेसिडिंग डिजिट क्या है? 3, तो आई कैन राउंड इट ऑफ टू 306.4, ठीक है ना? तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे देख लो ना, सपोज मेरे पास है 14.750, है ना, और 14.650, तो यहाँ पे 14.750 है, वो 14.8 हो जाएगा, है ना, लेकिन 14.650 जो है वो हो जाएगा 14.6, ठीक है ना? So if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged. If it is even, 5 का यहाँ पे preceding digit 6 है ना, 6 even है, तो ये अनचेंज रहेगा, अगर मुझे 5 को ड्रॉप करना है तो ये 6 अनचेंज रहेगा, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में 5 का जो प्रेसिडिंग डिजिट है 7, 7 जो है वो ऑड नंबर है, so if it is so the odd number has to be raised by 1 if 5 has to be dropped. Is this clear? Is this clear? बच्चों ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना, या फिर Yes. सिर्फ राम कुमार को समझ में आया? निशा, सपना, Yes, खुशी, sir.
Yes, sir. No. No or Yes. yes? Yes, Yes, sir. na? Okay. Asta, Rajeshri, Yes, Ankit, sir. right? Okay. Okay, next. Next is significant figures in calculation. ठीक है ना? So next is significant figures in calculation. अब लिखो significant figures in calculation. Now what are significant figures in calculation? ठीक है ना? तो कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? व्हाट आर द, है ना, बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन. ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे कि ना कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होते हैं इन अ बेसिक कैलकुलेशन. ठीक है? सो व्हेन वी मूव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, ठीक है, तो पहले लिख लो, है ना, इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, in most of the experiments, in most of the experiments, the observations of various measurements, the observation of various measurements, the observation of various measurements are to be combined mathematically, are to be combined mathematically, है ना, that is added, है ना, subtracted, multiplied, subtracted, multiplied or divided as to achieve the final result. As to achieve the final result, है ना? Since all the observations in measurement do not have the same precision, since all the observations in the experiment, since all the observations in the experiment do not have the same precision, it is natural that the final result cannot be more precise than the least precise measurement.
मेजरमेंट है ना, द फॉलोइंग two rules should be followed. The following two rules should be followed. So the following two rules should be followed to obtain the proper number of significant figures. Obtain the proper number of significant figures. Significant figures in any calculation. In any calculation. है ना? So बात ये है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, बहुत मेजरमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशन है ना, आर कॉम्बाइंड मैथमेटिकली, बेसिकली है ना, मैथमेटिकली कंबाइन किया जाता है, आइदर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, है ना, so that we get the final result, है ना. Now since all observation in the experiment do not have the same precision, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट को हम कितना प्रिसाइजली कंडक्ट कर सकते हैं, जितना प्रिसाइजली हम कंडक्ट करते हैं, है ना, तो सेम प्रिसीजन, ठीक है ना, सेम प्रिसीजन या फिर सेम एक्यूरेसी जो है ना, वो हर ऑब्जर्वेशन का नहीं रहता है ना. सो ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द एक्सपेरिमेंट डू नॉट हैव द सेम प्रिसीजन, ठीक है ना. तो एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी ऑब्जर्वेशन, मतलब है ना, हम जितने भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है ना, लेट से मान लो तुम लोग स्कूल्स में प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल में जब तुम लोग फाइनल कैलकुलेशन करते हो रिजल्ट का, ठीक है ना, कोई भी चीज का, ठीक है, एटलीस्ट 5 times वी टेक द ऑब्जर्वेशन, है ना. लेकिन 5 बार जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वहां पे मेजरमेंट अलग अलग हो जाता है कि नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वेशन में मेजरमेंट क्यों अलग होता है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल दैट मैकेनिकली, है ना, मैकेनिकली मतलब बाय ह्यूमन एफर्ट्स, है ना, बाय ह्यूमन एफर्ट्स, है ना, वी कैन फॉलो the same standard of or we can conduct an observation exactly the same way all 5 times, है ना. we can keep everything in the observation same all 5 times, है ना. 5 बार जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं, है ना, एग्जैक्टली उतना प्रिसाइजली नहीं हो पाता है, उतना प्रिसाइजली तो नहीं हो पाता है ना, ठीक है ना. तो मान लो, है ना, अगर मान लो हम कहीं पे मेजर कर रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, हम अगर कहीं पे कुछ मेजर करते हैं, ठीक है ना, मान लो कि वी आर मेजरिंग मास, मान लो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास जो है, लेट्स से इट इज 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स मान लो उसका मास है. तो अगर उसका मास 10 ग्राम्स है ना, ठीक है, तो जब हम मेजर करते हैं, ये भी हो सकता है कि वो 10 ग्राम्स और 1 मिलीग्राम है ना. तो है, लेकिन हम हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 10 ग्राम्स. ये भी हो सकता है वो 10 ग्राम्स 2 मिलीग्राम्स हो सकता है, लेकिन हमारा मेजरमेंट कितना आता है, 10 ग्राम्स. But are both the observation equally precise? No. In one observation, I am getting 10.1 milligrams, 10 grams 1 milligrams, and another measurement I am getting 10 grams 2 milligrams. ठीक है ना? आ रहे समझ में ना, ये थोड़ा थोड़ा डेविएशंस होते हैं ना. Not all the measurements are equally precise. Not all the measurement in all the observations are equally precise. आ रहे कि नहीं समझ, ठीक है ना. So for that, in order to obtain the proper number of significant figures in any calculation, we use some theoretical rules, ठीक है ना. वहां पे हम कुछ theoretical rules फिर हम, है ना, हमको मतलब है ना फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर, ओके, Yes, sir. ठीक है ना. थोड़ा थोड़ा डेविएशन तो आ जाता है ना, तो हमारा एम रहता है कि हम प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो मेजरमेंट को, है ना, लिख डालें, ठीक है.
तो इसके लिए है ना फाइनली हमको कुछ ना थियोरेटिकल रूल्स फॉलो करना पड़ता है. सो व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट रूल इज द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट of an addition or subtraction the result of an addition or subtraction in the number having in the number having in the number having different precisions. Should be rounded off. Should be rounded off the same number of should be rounded off the same number of decimal places as are present in the number having What is decimal? huh? What is Well, precision? decimal. समझ में नहीं आया बेटा. अच्छा वो डेसिमल है, डेसिमल ये वाला ना. Okay. सॉरी सॉरी, ये डेसिमल है बेटा. और No. हो गया ना. और ये प्रिसीजन है एंड दिस इज प्रिसीजन. ठीक है ना. द रिजल्ट ऑफ एन addition or subtraction in the number having different precisions should be rounded off the same number decimal places of the same number decimal places as are present in the number having least number of, है ना, as the number having least number of decimal places. तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है ना, एज नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ठीक है ना. इसका एग्जांपल मैं आई गिव यू इट्स एग्जांपल. फर्स्ट यू नोट डाउन दिस. पहले इसको तो नोट कर लो. Done, sir. हाँ हो गया ना. Yes, sir. ओके. No, sir, wait for a minute. अरे कहाँ गया ये, कहाँ गया. हाँ ये हो गया. Yes, sir. ओके. अच्छा अच्छा, इसका एग्जाम्पल अभी देना है मुझे ना. नाउ आई वांट टू गिव यू एग्जाम्पल अबाउट दिस. ठीक है ना. So example is, for example is suppose I have to add 33.3, 3.11 है ना, 0.31
4. ठीक है ना. सपोज इफ आई हैव टू ऐड दिस. सो ये हो गया 4, ये हो गया 1 1 2 3 1 4 3 7 3 1 4 3 7, right? Okay. Now point 3 3 6 और ये हो गया 3, है ना. सो इसको राउंडेड ऑफ क्या होगा? राउंडेड ऑफ टू, मतलब देयर आर एक्चुअली, मतलब यहाँ पे मुझे, मैं आई वाज एडिंग 3 नंबर्स. तो ये 3 नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है? 33.3 में है. कितना है? 1. So this number has to be rounded off to only one decimal place, है ना. So here 36.724 has to be rounded off to, है ना, one decimal place. So 36.724, है ना, rounded is rounded off to, this is rounded off to 36.7. तो ये जो 36.724 है, now it has been rounded off to 36.7. Is that clear? ये क्लियर है ना. ओके. नेक्स्ट, है ना, 2 ही तो रूल है. अच्छा, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना. ये एग्जांपल 1 था. Now I'll give you another example. So this is 1. I'll give you another example 2. So 2 अभी लिखो, है ना. 3.1427. Next is 0.541. Next is 0.81, है ना. तो मतलब यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसका है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसका है? 0.81 का. 2 डेसिमल प्लेस है. सो फाइनल कैलकुलेशन हैज टू बी राउंडेड अप टू ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है ना. तो ये 7 2 1 कितना हुआ? 3 4 4 8 1 9, है ना. ये 8 5 13 1 14. तो ये हो गया 4 और ये हो गया पॉइंट, है ना, 3 1 4. तो ये 4.4937. hence 4 point, हाँ, 4.49 है ना. 4.4937 has to be rounded off to 4.49. Has to be rounded off to 4.49. ठीक है ना. Has to be rounded off to 4.49. ठीक है ना. अच्छा, तो ये तो हो गया. Now I'll go to rule number 2. अब ये ना रूल नंबर 2 लिखो. रूल नंबर 2 says that the answer to a multiplication or division is rounded off to the same number of, is rounded off to the same number of is rounded up to the same number of significant figures
as is possessed by the least precise term है ना used in the calculation. है ना? So answer to a multiplication or division is rounded off to the same number of significant figures as is possessed by the least precise term used in the calculation. ठीक है ना? अच्छा, लीस्ट प्रिसाइज टर्म मतलब जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, सो दैट इज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म. ठीक है, जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, दैट इज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म, है ना? बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट वी स्टडीड, द मोर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द मोर इज द प्रिसिजन ऑफ द टर्म, है ना? So the less is the number of significant figures in a term, the less is the precision. है ना? अच्छा, एग्जाम्पल, चलो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को. एग्जाम्पल इज, सपोज आई विल टेक 142.06. तो इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? देयर आर 5 significant figures. There are 5 significant figures in this term. There are basically 5 significant figures in this term, है ना? Suppose I multiply this with 0.23. Suppose I multiply this with 0.23. ठीक है ना? ये कितना होगा? So if I multiply this with 0.23, how many significant figures basically are there here? There are like 5 significant figures in this case. Now, if I multiply this with 0.23, where there are only 2 significant figures, so there are basically 2 significant figures here. So how many significant figures are there here? There are like 2 significant figures. So how many significant figures are there? There are like 2 significant figures here. ठीक है ना? So suppose मान लो I'll multiply this, है ना? 3, 6, 18, 1, है ना? Now 3 into 2. 3 into 2 is equal to 3 into 2 is equal to 6. है ना? So 6, 3 4s are 12, 2, 1, 3, 1, 3 plus 1, 4. है ना? अच्छा, कितना आ रहा है? 12.6728. ठीक है बेटा, मैं एक बार चेक कर लो एक बार, है ना? 2 6 are 12. 1 2 0 4 8 3, है ना? 6 1 7 8 8 4 12. कितना आ रहा है ना? 32.8738. Yes, sir. 32.8738 आया ना? Yes, sir. अरे मुझे ना, Sir. मुझे, हाँ, सर यहाँ पे 8 की जगह पे 6 होगा सर. अच्छा वो गलत कैलकुलेशन हो गया क्या? हाँ, 4 2 6 है.
अच्छा मैंने Yes, sir. 448 ले लिया, 8 का जगह 6 होगा, ठीक है ना। सो 32.6738, ठीक है ना, ठीक है। और यस सर सब लोग बोल रहे हो, हाँ ठीक है। पॉइंट आउट द मिस्टेक, ठीक है ना, पॉइंट आउट द मिस्टेक। तो लास्ट में तो 4 ना होगा। लास्ट में 4 नो सर, 4 नहीं, 2 8 42। 4 12 है, ठीक है ना, 8 4 12 है, तो एक जाएगा ना, कैरी होगा, यस सर। 2 + 1 3 है ना, ठीक है। 32.6738, ठीक है ना। यस सर, इट इज राइट। अरे किसी का वीडियो मतलब बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, गाना वाना नहीं सुनाई दे रहा है। अरे अरे, वो मेरा फोन का प्रॉब्लम था, सॉरी, ठीक है ना। तो है ना, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है। सो फाइनली आई हैव टू राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। So basically 32.6738 can be rounded off to finally 33. So 32 है ना, so I can say that 32 है ना, so I can say that 32.6738 है ना can be है ना will be rounded up है ना, will be rounded off to two significant digits है ना, should be rounded off to, should be है ना rounded off to two significant digits. It has to be rounded off to only two significant digits, है ना, that is 33. तो अगर सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स को है ना उसको राउंड ऑफ करना है तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, शुड बी 33। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है ना, तो जितने भी टर्म हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी टर्म यूज कर रहे हैं, फाइनल आंसर हाउ इट शुड बी रिटन। तो जितने भी टर्म्स हैं उनमें से जिसका सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, then the final answer then the final answer should be then the final answer should be written in terms of the least number of significant figures, है ना। Okay, am I not audible? बच्चों मेरा आवाज सुनाई दे रहा ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, okay, सुनाई दे रहा है। दे रहा है ना। यस सर। ओके, नेहा बेटा ना थोड़ा वेट कर लो बेटा, है ना, इट विल बी ऑल राइट, ठीक है। सो we are into the last part of significant figures, that is order of magnitude. Last part of significant figures, one is, the other one is order of magnitude, है ना, order of magnitude, है ना। So basically what is order of magnitude, है ना। अच्छा, in scientific notation, अच्छा, in scientific notation, बेसिकली जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में the numbers are expressed as, फोटो भेजी। हाँ बेटा, Who's the Vishal? क्या हुआ बेटा, the numbers are expressed as number is equal to magnitude, है ना, into 10 to the power x, है ना, where m is
where m is a number that lies between 1 and 10, where m is a number, that lies between 1 and 10. Where m is a number that lies between 1 and 10, and x is an integer, ठीक है ना? The order of magnitude is of quantity is the power. The order of magnitude of the quantity is the order of magnitude of the quantity is the power of 10 required to, the order of magnitude of the quantity is the power of 10 required to, है ना, is the power of 10 required to represent the quantity. तो पहले तो इसको थोड़ा समझ जाए हम लोग, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, है ना. हैव यू नोटेड डाउन? ठीक है ना बच्चों, सब लोग नोट कर रहे हो ना? दीपिका, आयुष, अनुष्का, आस्था, ठीक है ना, खुशी, नंदिनी, नेहा, Yes, sir. निकिता, निशा, पल्लवी, ठीक है ना, प्रजक्ता, सब लोग नोट कर लिए बच्चों? प्रतीक, भाभी, ठीक है, ओके. तो बच्चों, है ना, बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, एक साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारा, है ना, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी नंबर को, m इंटू 10 टू द पावर x, मतलब सिंगल डिजिट into 10 to the power some power into 10 to the power some integer, है ना, into the power of 10, है ना. कोई भी नंबर को जब हम सिंगल डिजिट इंटू पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो 10 का पावर होता है ना. आई मीन आई कैन से दैट फॉर एग्जांपल, है ना, मान लो y इज ए क्वांटिटी जिसका वैल्यू है 699987, है ना. फॉर एग्जांपल y इज ए क्वांटिटी, है ना, जिसका वैल्यू इट इज, है ना, 69987, है ना, 69987 होता है ना. देन, है ना, आई कैन से दैट y इज इक्वल टू 6 पॉइंट, है ना, I have to represent it as like this, 6.99987 into 10 to the power 5. तो इसको सिंगल डिजिट और फ्रैक्शन में प्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे 5 का जो पावर, मतलब 10 का जो पावर है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो आई कैन से दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5 हियर. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, ऑफ y, है ना, नहीं समझ में आया बेटा, इक्वल टू 5. बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हमें ऑडिबल? Yes, sir. ये समझ में आ गया? शदाब, है ना, राजेश्री, प्रजक्ता, पल्लवी, Yes, sir. Yes, सपना, sir. Yes, sir. अच्छा,
सपना बेटा तुमको समझ में आया कि नहीं? अनीशा, अनीशा सर समझ में आया? आयुष, ठीक है ना? सबको समझ में आया ना? ओके, ठीक है, ठीक है ना? तो दैट वाज द एंड, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? ये इस चैप्टर का एंड है ना? तो कल क्या करेंगे? सॉरी, नॉट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इट इज द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इट इज द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, है ना? विच इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना? इट इज द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विच इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना? जो कि, है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना? ये उसका, इस चैप्टर का ना कॉन्सेप्ट का एंड है, ठीक है ना? तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो खत्म हो गया, है ना? अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, विल नेक्स्ट स्टडी अबाउट एरर्स ऑफ मेजरमेंट, वी विल नेक्स्ट स्टडी अबाउट एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना बच्चों? है ना? विल नेक्स्ट स्टडी अबाउट एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है? कल सिग्निफिकेंट फिगर्स के हम कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, देन विल गो टू एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है बच्चों? है ना? समझ में आया? ओके सर। यस सर। वेलकम। सर ये चैप्टर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हेलो। और 2 दिन, और 2 क्लास, ओके। ठीक है? उसके बाद हम मोशन स्टार्ट करेंगे। सर आप ओके फर्स्ट सर। चैप्टर पढ़ा चुके हैं? कौन सा चैप्टर? सर फिजिकल वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर तो ये चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड, अरे यस सर। वो पढ़ लेना ना, वो थ्योरी है, बोरिंग चैप्टर है पूरा, उसको पढ़ाना पड़ता है क्या? Physical world, है ना? ठीक है, वो स्टोरी जैसा है ना, स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना, इन साइंस, फिजिकल वर्ल्ड में ये सब है, ठीक है? अब वो मतलब थ्योरी है, कहानी है ना? कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं आएगा उस चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है? कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो स्कूल एग्जाम्स में आएगा, नीट कहीं पर वगैरह भी में नहीं भी आएगा। नहीं आता है? हाँ, सर नीट एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते हैं, है ना? सर किसी लेकिन किसी भी। अरे वो चैप्टर क्यों है पता है ना? वो एक्चुअली वो चैप्टर जो है किताब में इसलिए है, टू जनरेट इंटरेस्ट, है ना? कि फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है वो, ठीक है? यस। लेकिन ऐसा है कि एनसीईआरटी में वो चैप्टर ऐसा दिया है कि उसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है, और मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा भी ना, तुम लोग सो जाओगे, ठीक है? मैं पढ़ाते रहूंगा और तुम सो जाओगे, पक्का, है ना? 3-4 क्लास सोते रहोगे, ठीक है? तो अगर कोशिश करके ना खुद से हो सकता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना? जनरल आइडियाज ले लो, ठीक है? इट इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, है ना? तो 11-12 में इसलिए ये पहला चैप्टर है, ताकि ना फिजिक्स में क्या स्कोप है साइंस में, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो चैप्टर, ठीक है? ओके सर। इट्स ऑफ नो एकेडमिक यूज, है ना? एकेडमिक यूज इसी चैप्टर से होता है, यूनिट एंड डायमेंशन से। एक चैप्टर मैंने पढ़ा लिया है वेक्टर्स, वो मैं तुमको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है? सर विच चैप्टर? वेक्टर्स, वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है? मैं एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दूंगा तुमको, ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके, चलो, बाय देन, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।